Students, we will continue this chapter with the topic separation and isolation of DNA fragments. And we all know whenever we cut a piece of DNA with the help of restriction endonuclease enzyme, we will get the fragments of DNA. You know all these things, but how we can separate these DNA fragments? So for separation of these DNA fragments, there is a technique known as gel electrophoresis. This is the name of technique, gel electrophoresis. So by the help of this technique, you can separate the various DNA fragments which you get after the cutting a long thread of DNA with the help of enzyme restriction endonuclease. Because you all know that DNA molecule is a negatively charged molecule. We all know this fact also. So when DNA fragments are negatively charged molecule, they can be easily separated whenever we force them to move towards the anode when we apply an electric field through a medium. And medium की जगह पर हम क्या लेंगे? We use the matrix that is called agarose gel. And agarose gel, we all know that it comes from the algae. तो एगार एगार जिसको हम बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एग्रोस जेल. तो उस एग्रोस जेल में सपोज दिस इज द एग्रोस जेल, this is a medium, this behaves as a medium. So with the help of this you can separate the DNA fragments because it is negatively charged, and when you apply the electricity it obviously move towards the opposite charge, that is anode. Positive charge की तरफ ये run करेंगे. तो with the help of this diagram you can see, this diagram is also very important for your board purpose. So this is our agarose gel electrophoresis and this is a plate like structure. ये ऐसा plate like structure है, यहाँ पर agarose gel इन्होंने रखा हुआ है and these are known as the wells. These are small you can say hole like structure. तो इन होल्स में हम डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो रख देते हैं, जो भी डीएनए हमें सेपरेट करना है तो वो हम इसमें डालते हैं, वो सैंपल डीएनए सैंपल डालते हैं एंड देन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी. एंड ये एग्रोस जेल है सारा जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द एग्रोस जेल. एंड व्हेन एवर यू अप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी you all know that these DNA fragments separate according to their site through the sieving effect provided by the agarose gel. agarose gel का sieving effect होता है, वो उसके अंदर मूव कर सकते हैं these DNA fragments. तो ये एनोड की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे. सपोज दिस इज द एनोड एंड हियर इज दीज आर द वेल. इन दीज वेल यू पुट द DNA सैंपल्स. जो DNA सैंपल आपको सेपरेट करने हैं वो यहाँ पर आपने रखे हैं. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं दे स्टार्टेड रनिंग इनटू इट, ये इसके अंदर चलना स्टार्ट होंगे. एंड जो सबसे स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा इट इज़ द फार्दर, मतलब वो सबसे यहाँ पर पहुँचा होगा, इस जगह पर कहीं पर यहाँ पर आपको मिलेगा दूर, मतलब जितना स्मॉल फ्रेगमेंट उतना दूर आपको मिलेगा. ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार आया है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. स्मॉलर द सेगमेंट फार्दर फ्रॉम द वेल्स, तो वेल्स से वो दूर मिलेगा. एंड आफ्टर देन जब ये यहाँ तक रन करके आगे सारे आप देख सकते हो, इफ़ आई रिमूव द इंक यू कैन सी दीज आर द ऑल रेड कलर जो दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द DNA फ्रेगमेंट, बट यू कैनॉट सी इट डायरेक्टली. तो दीज सेपरेटेड DNA सेगमेंट्स can be seen after staining these segments with a compound known as ethidium bromide. Ethidium bromide is again an important name, ethidium bromide. तो हमको बिना कलर किए हुए स्टेन किए हुए डीएनए के सेगमेंट्स को हम देख नहीं सकते. एंड आफ्टर coloring them or you can staining these DNA fragments you have to give them exposure of ultraviolet radiation, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बिना भी आप इनको नहीं देख पाएंगे. तो आपको इनको स्टेन करना है एंड देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इनको देखना है, बिकॉज विजिबल लाइट में आप चाहो कि आप देख लो विदाउट स्टेनिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आफ्टर स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड एंड एक्सपोजिंग देम टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो आपको ये ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट्स इस तरह से एग्रोस जेल पे दिखेंगे, बिकॉज एग्रोस जेल इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट एंड डीएनए इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. तो हाउ यू कैन सी वेयर इज़ द डीएनए, तो वो ऑरेंज कलर के बैंड्स के फॉर्म में आपको ये दिख जाएंगे. और ये जो जब दिख जाते हैं तो फिर नेचुरली इनको अब आपको निकालना है, क्योंकि एग्रोस जेल में तो एक मेथड था कि आपने इनको सेपरेट कर लिया इनके अंदर, बिकॉज डीएनएज आर सो फ्रेजाइल, उनको आप हाथ में लेके तो ऐसे नहीं कर सकते कोई भी काम. देन यू हैव टू जस्ट इनको कट करके आपको निकालना है बाहर. तो एग्रोस जेल से निकालना इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जेल पीसेस को, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन. दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, that is called illusion. That means separated DNA bands
DNA bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is called elution, and the DNA fragments purified in this way, we can use them in the formation of recombinant DNA, or you can say construction of recombinant DNA by joining them with cloning vectors. जब आप cloning vectors के साथ इनको join कर देंगे तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो इस मेथड से, क्योंकि पहले आपको डीएनए सेपरेट भी तो करना होगा अगर आप उनकी क्लोनिंग करना चाहते हो, तो यू हैव टू सेपरेट द पीस ऑफ डीएनए, एंड फॉर सेपरेशन ऑफ दैट पीस ऑफ डीएनए यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड आफ्टर देन व्हेन यू गेट द डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, आप इसको किसी भी वेक्टर के साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और अपना मनपसंद क्लोनिंग जीन की करा सकते हैं. Now come to the another topic that is known as cloning vectors. So who are the cloning vectors? Actually, cloning vectors we have studied in the previous lecture, that plasmids and bacteriophage. These are the two main cloning vectors. There are lots of cloning vectors are there, but in our syllabus they have given only two names. So I am mentioning these two only, plasmids and bacteriophage, and these have the capacity to replicate within the bacterial cell. You all know that इनकी कैपेसिटी क्या होती है, रेप्लिकेट करना, एंड ये बैक्टीरियल डीएनए की क्रोमोसोम उस पर क्रोमोसोम पर भी डिपेंड नहीं करते. तो बैक्टीरियोफाजेस आर बेटर क्लोनिंग वेक्टर इन केस ऑफ these recombinant DNA technologies, because they have high number per cell, have very high copy number you can say. जैसे सपोज ये कोई बैक्टीरियल सेल है तो यहाँ पर प्लाज्मिड्स, जैसे मैंने बताया ये बैक्टीरियल सेल है, दिस इज़ द प्लाज्मिड एंड दिस इज़ इट्स ओन ओरिजिनल डीएनए क्रोमोसोम. तो ये जो बैक्टीरियोफाजेस हैं दे हैव हाई नंबर ऑफ कॉपीज़. तो अब इनके पास अगर हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं तो इसमें मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो फॉरेन डीएनए को. तो दिस इज़ द थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, दैट सम प्लाज्मिड्स may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others have 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल. तो ऑब्वियस है कि आप 100 कॉपीज़ वाला लेना चाहेंगे जो वेक्टर है कि आपको मैक्सिमम कॉपीज़ जीन्स की डुप्लीकेट होकर के मिलेंगी, तो देयर नंबर कैन गो इवन हायर ऑल्सो. तो इफ़ वी आर एबल टू लिंक एंड एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द बैक्टीरियोफाजेस, और यू कैन से प्लाज्मिड बोल सकते हो आप बैक्टीरियोफाजेस की जगह, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी ऑफ द प्लाज्मिड्स, क्योंकि जितने यहाँ पर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर उतना. तो आपको जो वेक्टर चूज़ करना होता है वो इस हिसाब से ही चूज़ करना होता है कि वो पर सेल कितनी कॉपी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर कॉपीज़ अगर वो जनरेट करते हैं तो इट विल बी बेटर. सो बैक्टीरियोफाजेस have the high number per cell, so they have high copy number of their genome within the bacterial cell also. So that's why you select them, plasmids or bacteriophage, as a cloning vector. Now there are some features that are very much important to facilitate the cloning into a vector. तो क्या है वो important चीज़ें, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज important things. The first thing is ORI, that is origin of replication. Important thing again, what is ORI or origin of replication? This is a sequence from where replication starts. कोई भी DNA segments है तो उसमें सपोज दिस प्लेस इज़ नोन एज ORI, तो ये प्लेस ऐसा प्लेस होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए यू कैन लिंक टू दिस सीक्वेंस. तो यहीं पर आप कोई भी डीएनए सीक्वेंस को लिंक कर सकते हो, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ORI. एंड आफ्टर लिंकिंग द डीएनए विद इट, ये रेप्लिकेट करेगा विद इन द होस्ट सेल, तो आपको बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ मिलेंगी. और ये हम सेलेक्ट इस बेसिस पर करते हैं, जैसे भी हम पीछे पढ़ा, कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम जितना ज़्यादा उसमें कॉपीज़ प्रोडक्शन हो सकता है, अगर होस्ट के अंदर वेक्टर अगर इस तरह का है हमारा, तो हम मैक्सिमम कॉपीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं. Another thing is the selectable marker. So what are the selectable markers? Actually vector requires a selectable marker so that you can identify the transformant from the non-transformants. अब ये transformants and non-transformants क्या हैं? Students, suppose this is the DNA ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, एंड यहाँ पर आपने एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, बिकॉज दीज ऑल आर प्रेजेंट इनटू अ बैक्टीरियम सेल. ये भी बैक्टीरियम सेल के अंदर होगा डीएनए, ये भी बैक्टीरियम सेल के अंदर होगा. एंड सपोज दिस इज अ कल्चर प्लेट जिसके ऊपर आप ग्रो कर रहे हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ सच टाइप काइंड ऑफ थिंग्स. तो अब इन चीज़ों में से यू कैनॉट रिकग्नाइज वेरी इजीली कि विच वन हैज़ दिस फॉरेन डीएनए एंड विच डोंट, क्योंकि यहाँ तो मैंने डायग्राम बना दिया, यू कैन सी इट विद योर आइज़, बट बैक्टीरिया को तो आप
अपनी आईज से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी आपको सिंपल बैक्टीरियाज ही दिखेंगे सारे. यू कैनॉट नो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये इसके अंदर कौन सा में मैंने इंसर्शन किया है, फॉरेन डीएनए डाला है, किस में नहीं डाला है. तो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, सपोज इसमें मैंने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट, और इसमें मैंने नहीं किया है तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. अंडरस्टैंड दिस थिंग. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी इंसर्ट ऑफ डीएनए. इंसर्ट मीन्स डीएनए का कोई टुकड़ा मैंने इसमें इंसर्ट नहीं किया है इसके डीएनए में. एंड हेयर दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट, इसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको चेंज कर दिया, मैंने इसमें डीएनए डाल दिया, फॉरेन डीएनए डाल दिया. तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू रिकॉग्नाइज ट्रांसफॉर्मेंट एंड टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. तो फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि ये हम चाहेंगे ग्रो करना, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर अपना मनपसंद जीन डाला हुआ है. तो वी विश टू ग्रो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नॉट दिस टाइप. तो हमें ये वाला तो नहीं चाहिए, तो ये वाला इस टाइप का चाहिए होगा. तो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट, और यू कैन से आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ओनली दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, कि केवल ये ग्रो करें, ये ना ग्रो करें. तो हमें उसके लिए कुछ मेथड्स, हमें कुछ तरीके यूज़ करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज देम. ट्रांसफॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू, इज़ अ प्रोसेस through which a piece of DNA is introduced into a host bacterium, as I told you here. मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है. तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेंट सेल. तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, बेसिकली वी टेक द जीन्स विच आर इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक chloramphenicol, amplicin, tetracycline, kanamycin, all these are the antibiotics. And in the plasmids there are certain genes which encodes for रेजिस्टेंस टू दीज एंटीबायोटिक्स. वो उनके अंदर रेजिस्टेंस होती है उन जीन्स के अंदर, इन बैक्टीरियाज के प्लाज्मिड्स में, जो इन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं. तो वो जीन्स होते हैं, उन जीन्स की वजह से ही उनके अंदर ये रेजिस्टेंस की कैपेसिटी जो है वो आती है. एक्चुअली किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए कोई भी प्लाज्मिड या कोई भी बैक्टीरियम रेजिस्टेंस कैसे होता है, ड्यू टू देयर जीन. तो वो जो जीन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उनके अंदर वो रेजिस्टेंस आती है. तो वी आर टारगेटिंग दैट जीन्स. तो द जीन विच आर इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, लाइक जैसे मैंने आपको नेम्स बताए इतने सारे, तो उनमें से किसी के लिए भी, तो दे आर यूज्ड एज अ यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स इन द केस ऑफ E. coli. And usually normal E. coli cells do not carry any resistance against any of these antibiotics. अगर एक नॉर्मल सेल होगी ना, तो उसके अंदर ये जो मैंने नाम बोले, एम्प्लीसिन, कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्पिनिकोल, किसी के लिए भी उनके अंदर रेजिस्टेंस होती ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप इंसर्ट नहीं कर दो उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए. तो अब व्हाट हैपन, द नेक्स्ट केस इज़ द क्लोनिंग साइट्स. अब क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं, दूसरी चीज़ आ गई. क्लोनिंग साइट्स में यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट कि इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ एलियन डीएनए और अ फॉरेन डीएनए, द वेक्टर नीड्स टू हैव सर्टेन रिकग्निशन साइट्स. अब आप कोई फॉरेन डीएनए उस डालना चाहते हैं किसी बैक्टीरियम के अंदर, तो उसके अंदर का जो डीएनए है उसके अंदर कुछ ऐसे साइट्स होंगे विच यू कॉल द रिकग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. वहाँ पर होंगे कुछ एक साइट्स ऐसे होंगे, सपोज दीज आर द साइट्स जहाँ पर आप फॉरेन डीएनए डाल सकते हो, क्योंकि हर जगह पर आप फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते. तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स. अब आपको पता है, अगर आप सपोज इसमें हम 4 प्लेसेस पर इंसर्ट कर सकते हैं फॉरेन जीन, तो इट विल बी क्रिएट कन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें 4 तरह के जीन प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी 4 जीन्स की. फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी रिकॉग्नाइज करना कि आपने कौन से जीन को कहाँ पर रखा है. इट विल बी क्रिएट डिफिकल्ट. तो मोस्टली प्रेफर क्या करते हैं हम कि बेसिकली एक ही साइट हो तो बहुत अच्छी बात है. ओनली वन साइट इज़ देयर विच इज़ एबल टू अलाइन, यू कैन से लाइगेट द फॉरेन डीएनए. मतलब एक ही साइट हो जहाँ पर हम फॉरेन डीएनए डाल सकते हैं, बजाय कि बहुत सारी जो साइट्स हैं. तो दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स. बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना इसके, एंड इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन जीन क्लोनिंग प्रोसेस. ये क्वेश्चन भी आता है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वाई यू प्रेफर द वेक्टर वेयर देयर इज़ अ ओनली वन क्लोनिंग साइट. तो वो इसका आंसर ये होगा आपका. The ligation of alien DNA is carried out a restriction site present in one of the 2 antibiotic resistant gene. अब ये समझने के लिए you have to see this diagram. This is the another diagram, and this diagram is
वेक्टर, ये वेक्टर का डायग्राम है, वेक्टर PBR322, दिस इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर एंड इट इज प्रेजेंट इन ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर का क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड है and it shows several restriction sites like you can see in the diagram HIND3 EcoR1 BAM-H1 SAL1 PVU2 PST1 CLA1, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं these all are the cloning और सॉरी यू कैन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ये सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं यहाँ पर. सपोज वी आर कंसिडरिंग BAM-H1 साइट, so if I am just taking this as example, so suppose you can ligate a foreign DNA at BAM-H1 site of tetracycline resistant gene. यहाँ पर आपने BAM-H1 साइट पर एक जीन इंसर्ट कर दिया जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है. सपोज वी टेक दिस कलर, ओके दिस कलर इज़ फाइन. तो ये जो हमने जीन सेलेक्ट किया BAM-H1 साइट पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है इन द वेक्टर. अब ये वेक्टर के अंदर हमने डाला इसको, तो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी वजह से ही तो रेजिस्टेंस थी. अब आपने यहाँ पर ये फॉरेन डीएनए डाल दिया, ग्रीन कलर का मैंने लगा दिया, दिस इज द फॉरेन डीएनए, तो इसने अपनी रेजिस्टेंस क्या कर दी, लूज कर दी, क्योंकि ये पहले जब ये नॉर्मल था लाइक दिस, सपोज दिस इज द नॉर्मल प्लाज्मिड, तो ये जो BAM-H1 साइट है दिस इज रेजिस्टेंट फॉर द टेट्रासाइक्लिन, मतलब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस थी इसके अंदर. दैट मीन्स अगर आप टेट्रासाइक्लिन डालते तो ये उसको रेजिस्ट करता, लेकिन अभी आपने इसके अंदर ये वाला जीन काट के निकाल दिया और इसकी जगह पर अपना जीन ये डाल दिया न्यू, कोई सा भी जो भी आपका मन था, इसमें आपने एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया BAM-H1 साइट पर एंड ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इस तरह से क्या हो जाएगी, लूज कर देगा ये जो साइट है यहाँ पर. तो द अब नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहोगे इसको आप. तो recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA, but you can select it out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium. Now student you have to understand very careful. अब ये तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, आप देख रहे हो ये दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेंट, और जो नॉर्मल वाला था आपका, सपोज दिस इज़ द नॉर्मल वन प्लाज्मिड PBR322, ये अपना पड़ा हुआ है ऐसे ही, लेकिन यू कैनॉट रिकोगनाइज देम. अब आप इनको कल्चर प्लेट में जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर आप रिकोगनाइज नहीं कर सकते, यू कांट सी बैक्टीरिया विद नेकेड आइज, और जब आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो यू ऑल बैक्टीरिया लुक सेम. तो फिर आप ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर दिस पर्पज़ यू हैव टू प्रिपेयर 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स आपको बनानी है कल्चर प्लेट्स. सपोज इफ़ आई चेंज द कलर, एक ये प्लेट बना ली आपने और एक ये प्लेट बना ली. एक के ऊपर आपने डाला टेट्रासाइक्लिन और दूसरे पर आपने डाला जो एम्प्लीसिन है, AMPLI, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये टेट्रासाइक्लिन है. तो ये एंटीबायोटिक्स आपने इस पर डाला है. दैट मीन्स वन यू प्लेट, you can say plating. So if you want to select out transformant from non-transformant, or you can say recombinant from non-recombinant, you have to do this plating thing. तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको फर्स्ट यू विल ग्रो देम ऑन द टेट्रासाइक्लिन. तो सारे बैक्टीरियाज को आप टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो कराएंगे, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे वहाँ पर आप टेट्रासाइक्लिन जो है वो देंगे. तो ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम और प्लांट, ये वाला, एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट जिनको कि आपको रिकग्नाइज करना है. तो जब आप टेट्रासाइक्लिन पर इनको ग्रो करेंगे, और टेट्रासाइक्लिन के लिए ही यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि दे विल लूज़ द रेजिस्टेंस फॉर द टेट्रासाइक्लिन. तो टेट्रासाइक्लिन के लिए ये रेजिस्टेंस जो है वो लूज़ कर चुके हैं. तो ट्रांसफॉर्मेंट जो हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर आप देखोगे कि वो अगर ग्रो करना चाहोगे तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर वो ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ओनली इन एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम, नॉट इन टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंट. अब वो टेट्रासाइक्लिन से उनकी रेजिस्टेंट अपने को यानी कि बचाने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, तो वो टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे, सारे फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किल्स द बैक्टीरियम, यू नो. एंड ऑल द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, दैट मीन्स जहाँ पर आपने ये चेंज नहीं किया, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट की टेंडेंसी उनमें है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन बोथ द एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम, वो दोनों पर ग्रो कर जाएंगे. वो इस पर भी ग्रो कर जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन पर भी, और वो एम्प्लीसिन पर भी ग्रो कर जाएंगे, बिकॉज दे हैव दैट पावर टू फाइट अगेंस्ट
एंटीबायोटिक्स, लेकिन जहाँ पर आपने फाइट करने की जिसके पास कैपेसिटी थी वो वाला जीन ही निकाल दिया, ये वाला जीन ही काट के आपने निकाल दिया था, टेट्रासाइक्लिन वाला जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो आपने निकाल दिया था। अब अगर इसको आप टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो कराएंगे तो ऑब्वियसली ये ग्रो नहीं करेगा। तो दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्प्लीसिन कंटेनिंग मीडियम विच कैन ऑब्वियसली ग्रो are then transferred to a medium containing tetracycline. The recombinants will grow only in amplicin containing medium, not on the tetracycline. tetracycline पर ये ग्रो नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस फिनिश हो गई है तो ये किल हो जाएंगे सारे। एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, चाहे आप एम्प्लीसिन में ग्रो कराना चाहे आप उनको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराना। तो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन द सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से आपने इसको क्लियर कर पाया आपकी कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट था एंड कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। तो अब ये जो प्रोसेस है पूरा, दिस प्रोसेस इज़ वेरी टीडियस प्रोसेस, मतलब बहुत ही ट्रबलसम प्रोसेस है, क्योंकि अब एंटीबायोटिक्स की प्लेट्स बनाना और फिर ये बैक्टीरिया को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, दिस इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी देयर आर सम अदर, और यू कैन से सम दूसरी टेक्निक्स, ऑल्टरनेटिव्स आप कह सकते हो, सम अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स आर देयर। तो वी आर नाउ अ डेज यूजिंग ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर मेथड्स, एंड व्हाट वी डज इन दिस सेलेक्टेबल मार्कर मेथड, तो इसमें हम क्या करते हैं कि वी ऑल्सो डू द सेम थिंग, दैट मीन्स कि वी डेवलप दिस टेक्निक, एंड बाय दिस टेक्निक वी कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस, कि वी गिव अ क्रोमाजेनिक सब्सटेंस, क्रोमा मीन्स होता है कलर। तो जब कोई हम सब्सटेंस ऐसा डालते हैं, अगर सपोज कोई बैक्टीरियल प्लेट है, दिस इज़ द बैक्टीरियल कल्चर प्लेट, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, यू डोंट नो कि कौन से बैक्टीरिया हैं, बट इसमें जब आप एक सब्सटेंस डालते हैं बाहर से, कोई भी सब्सटेंस, क्रोमाजेनिक सब्सटेंस वो होना चाहिए, देन इट विल गिव कलर्स। सम ऑफ बैक्टीरिया आर एबल टू गिव कलर्स, कुछ बैक्टीरिया जो हैं इसमें क्या प्रोड्यूस कर देंगे, कलर प्रोड्यूस कर देंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो विदाउट कलर रहेंगे। तो ऐसे करके आप आँखों से देखकर दूर से ही पहचान सकते हैं। पिछली वाली टेक्निक में यू हैव टू वॉच देम इन द माइक्रोस्कोप्स, इसमें तो आपको माइक्रोस्कोप से सिंपल आपने देखा और आपको तुरंत पता चल गया कि ये वाले बैक्टीरियम जो कलर्ड हैं, जो भी कलर हो, वॉट एवर द कलर इज़, तो कलर के बेसिस पर आप उनको रिकोगनाइज कर सकते हैं। तो इट विल बी मोर ईजी इन कंपेरिजन टू दैट वन। तो अब उसके लिए हमने क्या किया कि सपोज यही सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं समझने के लिए, जस्ट फॉर, तो सपोज वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन द प्लेस ऑफ अ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सेम एग्जांपल है, समझ लो कि ये यही वाला एरिया मैं ले लेती हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस। ये वाला एरिया जो है हमारे प्लाज्मिड का जो है जीन, ये जीन है, इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। वी आर जस्ट अज्यूमिंग, ये इसमें होता नहीं है इस वाले प्लाज्मिड में, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सपोज कोई दूसरा प्लाज्मिड हो तो ऑब्वियसली प्लाज्मिड तो ऐसे ही दिखेगा ना आपको। तो समझ लो उसमें जीन था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता था। आपने यहाँ पर इसको कट करके ये अपना पसंद का कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर दिया, विच इज़ इन द ग्रीन कलर, आई हैव शोन यू, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो अब वो जीन यहाँ पर जो पहले था, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता था, अब वो तो है नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन हो गया ना, ये जीन इनएक्टिव हो गया अब, एंड इट विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द एंजाइम, एंड अगर ये एंजाइम नहीं बनाएगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक फंक्शन, तो मेटाबॉलिक फंक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि आपने ये फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट किया है, इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि यहाँ पर इंसर्शन होने की वजह से, फॉरेन डीएनए की वजह से ये जीन इनएक्टिव हो गया। एंड जब अब आपने काम किया ये वाला और उसके बाद आपने इसमें क्रोमाजेनिक सब्सटेंस डाला कोई सा भी, तो यू विल फाइंड ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ़ दीज प्लाज्मिड्स इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट। अब जैसे हम लोगों ने इसमें ये वाला फॉरेन डीएनए डाला हुआ है, तो यहाँ पर इंसर्ट है, अब ये जीन इनएक्टिव हो चुका है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना रहा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये कोई भी कलर नहीं देगा, ये कलरलेस कॉलोनीज रहेंगी। लेकिन अगर इसमें सपोज इंसर्ट ये नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये वाला जीन जो था इट इज़ नॉर्मल जीन, लाइक ये प्रोड्यूस कर सकता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, देन इट विल गिव द ब्लू कलर। ये कैसा कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा कॉलोनीज में। तो इफ़ देयर इज़ नो इंसर्ट, ब्लू कलर विल फाइंड,
or you can say you observe the blue color, and if insert, that means foreign DNA is there will be no production of any color in the colonies of bacteria. तो आप दूर से ही देख करके इनको recombinant and non recombinant को पहचान सकते हैं. And insertional inactivation is very important topic, and it is very simple that because of insertion of foreign gene, this gene loses its capacity to produce the enzyme beta galactosidase, and this process is known as insertional inactivation. That means inactive हो जाना किसी gene का due to the insertion of foreign DNA. This is simple thing. Now next to the most interesting thing again, and the interesting thing is that vectors for cloning gene in plants and animals, we know all these things, बट कहाँ से ये आइडिया आया हमारे साइंटिस्ट के दिमाग में कि दैट वी कैन ट्रांसफ़र द जीन, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर एबल टू ट्रांसफ़र द जीन फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल. बट ये आइडिया कहाँ से आया? तो एक्चुअली व्हेन साइंटिस्ट ऑब्जर्व द थिंग दैट the genes which were transferred into plants and animals with the help of bacteria and viruses, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र जीन के ट्रांसफ़र होने का काम है ये प्लांट्स में और एनिमल्स में बैक्टीरियाज एंड वायरसेस पता नहीं कब से करते चले आ रहे हैं इन देयर नॉर्मल फंक्शनिंग. वो नॉर्मली वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जीन यहाँ से वहाँ, और उसको ऑब्जर्व करके जब लोग डिजीज़ को स्टडी कर रहे थे या वॉट एवर, तो तब उनको लगा कि ये वाली टेक्निक जो ये एनिमल्स नेचुरली करते हैं, वाई नॉट वी यूज़ इट और वाई नॉट वी एम्प्लॉय इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन मैनकाइंड. तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ें जो नॉर्मली ये करते आ रहे थे बैक्टीरिया एंड वायरसेस, एंड वो क्या करते थे बेसिकली, they deliver the gene and transform the eukaryotic cell. For example, if you take the example which is given in your book also, that is agrobacterium tumefaciens. ये agrobacterium जो था, बैक्टीरिया जो था, ये क्या करता था, ये बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में एक पीस ऑफ डीएनए, इट हैज़ एन एबिलिटी टू ट्रांसफ़र द टी डीएनए, जिसको हम लोग टी डीएनए इसलिए बोलते हैं, दैट मीन्स क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर देता था. तो इसकी एबिलिटी थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की कि ये जो डीएनए है, टी डीएनए है, इसको वो नॉर्मली एक प्लांट से दूसरे प्लांट में छोड़ता रहता था, और जिसकी वजह से क्या होता था कि दैट नॉर्मल प्लांट सेल कन्वर्ट्स इनटू द ट्यूमर सेल्स, एंड दीज ट्यूमर सेल्स आर डायरेक्टेड इन सच अ वे बाय दीज बैक्टीरिया दैट दे प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजेंस ओनली. एंड अब ये चीज़ तो फिर प्लांट के लिए अच्छी नहीं हुई ना, क्योंकि ये एग्रोबैक्टीरियम ने क्या किया, इसने अपना कोई भी डीएनए जो टी डीएनए था वो ट्रांसफ़र कर दिया प्लांट के अंदर, और अब प्लांट के अंदर जब इसने ये वाला डीएनए डाल दिया अपनी पसंद का डीएनए, तो अब ये इसको बोलता है इस डीएनए को कि वही चीज़ें आपने बनानी है, वही केमिकल्स बनाने हैं विच इट रिक्वायर्स. दैट मीन्स जो एग्रोबैक्टीरियम को चाहिए वो अपनी पसंद की चीज़ें बनवाता है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ इन्फेक्शन. जैसे आप देखते हैं प्लांट्स के अंदर गांठ सी पड़ जाती हैं, ट्यूमर्स पड़ जाती हैं, बहुत तरह की डिजीज़ होती हैं प्लांट्स की. तो ये इस तरह से कॉज करते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो केमिकल्स प्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट सेल से, जिस प्लांट सेल के अंदर ये अपना पसंद का डीएनए ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो नॉर्मल सेल को ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं. सिमिलरली लाइक इन रेट्रोवायरस केस ऑफ एड्स, HIV, तो उसमें भी यही होता है कि दे हैव द एबिलिटी, द रेट्रोवायरस दैट मीन्स एड्स वायरस और HIV वायरस हैज़ द एबिलिटी दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स. एंड जब डॉक्टर्स ने, मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ये स्टडी किया कि ये किस तरह से चेंज कर देते हैं अपने पसंद का डीएनए डाल के या आरएनए डाल के, तो दे एम्प्लॉय देम, दे जस्ट चूज़ अ टेक्निक वेयर दिस आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय दिस पैथोजन इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो उसकी नॉलेज जो थी इनको जब मिली, तो इन्होंने इनको यूज़ किया एज अ टूल्स फॉर introducing the useful genes into the organisms, or you can say human beings or plants. तो जब उनका काम ही है यहाँ से वहाँ जीन पहुँचाना, बट दे आर डिलीवरिंग द हार्मफुल जीन्स. तो जब हम लोग कोई टेक्निक पता चल गई कि ये तो यहाँ से वहाँ जीन्स पहुँचाते ही हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया. डिसआर्म मीन्स इनको हार्मफुल की बजाय हार्मलेस कर दिया, और इसमें अपने यूज़ का डीएनए, अपने जो एक आप कह सकते हो जो हमारा यूज़फुल डीएनए है, जो काम का डीएनए है, एंड विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लांट और एनिमल, उनको हमने इनके अंदर डाल दिया. तो इनको तो पता नहीं कि हम हार्मफुल ले जा रहे हैं कि हम यूज़फुल ले जा रहे हैं, उनको तो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू ले ही जाना है. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो TI प्लाज्मिड था, जिसको TI प्लाज्मिड बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड लिखा जाता है T और स्मॉल i.
ऑफ एग्रोबैक्टीरियम जो था, इसको वी हैव मॉडिफाइड देम, हमने इनको मॉडिफाइड कर लिया, इसको भी कर लिया है, और रेट्रोवायरस HIV वायरस को भी हमने मॉडिफाई कर लिया है, एंड वी यूज़ देम एज अ क्लोनिंग वेक्टर ऑफ मोस्ट पैथोजन टू द प्लांट्स। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल तो है ही, दे नो हाउ टू डिलीवर, तो मैकेनिज्म तो सेम हम यूज़ करते हैं, तो दे आर यूजिंग द सेम मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन, बट नाउ दे आर डिलीवरिंग द जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट विच वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दैम, नॉट दे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दैम, क्योंकि वो तो नुकसान पहुंचा रहे थे। पर हमने उसमें क्या कर दिया, यूजफुल DNA डाल दिया। सपोज ये ट्यूमर वाला DNA ले जा रहा था, ये जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, हमने इसमें वो वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से इनके अंदर इंसेक्ट्स नहीं लगते, पेस्ट नहीं लगते। तो इसको तो नहीं पता है कि आपने कौन सा जीन एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया, तो ये तो नॉर्मली जीन ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अब आपके इस प्लांट के अंदर क्या नहीं लगेंगे, इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, पेस्ट नहीं लगेंगे, बिकॉज यू रिप्लेस दैट हार्मफुल जीन विद द gene of interest which you want to introduce them into the plant. So in this way we learn this technique from the normal functioning of bacteria and viruses, when we saw them that they have that ability to deliver the foreign DNA from one plant to another plant, or one animal cell to another animal cell. So this is all for today. We will discuss few things, a few other things in the next lecture.